Hello everyone, welcome to you all in today's English class. Today we will start Unit 11, The Wonderful World. So open your textbook, open page number 93. Unit 11, The Wonderful World. Have you ever thought of the beautiful world around us? क्या आपने कभी अपने आसपास के सुंदर दुनिया के बारे में कभी सोचा है? A number of poets, philosophers and many others have discovered the secrets of nature and wisdom that spellbound us. कई सारे पोएट्स, फिलोसोफर्स और कई अन्य लोगों ने नेचर के जो सीक्रेट्स है, जो नेचर का विजडम है, उसके बारे में हमें बताया है, उसके बारे में उन्होंने खोज की है. There are some things in the environment that appeal to all of us. एनवायरमेंट में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पसंद आती है. The Queen of Flowers, फूलों की रानी. There are a number of flowers that we see around us. बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिसे हम हमारे आसपास देखते हैं. One of them is the rose. उनमें से एक रोज़ है. हम अपने आसपास कई सारे अलग अलग तरह के फूल देखते हैं. उसमें से एक रोज़ यानी कि गुलाब है. It has been a symbol of love, dedication, divine affection, respect and so on. रोज़ यानी कि गुलाब लव, डेडिकेशन, डिवाइन अफेक्शन, रिस्पेक्ट और कई बहुत सारी चीज़ों का सिंबल है. Roses are also called the divas of our garden. गुलाबों को यानी कि रोजेस को हमारे बागीचे का दिवास कहा गया है. अगर गार्डन में रोजेस हो तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं. चिल्ड्रन, दिवास, दिवास मीन्स अ फीमेल स्टार. सो गुलाब को गार्डन का फीमेल स्टार कहा गया है. दे एड ब्यूटी एंड ब्राइटनेस टू द एनवायरमेंट. वो एनवायरमेंट को सुंदरता और ब्राइटनेस देते हैं. यू कैन सी हियर डिफरेंट रोजेस. पिक्चर्स आर शोन हियर. हैव वी एवर वंडर्ड अबाउट अ लाइफ विदाउट फ्लावर्स एंड कलर्स? क्या हम कभी भी फूल या फिर रंगों के बिना की जिंदगी को इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं? There are more than 100 species of roses around us. हमारे आसपास 100 से भी ज़्यादा गुलाब की अलग अलग जातियाँ हैं. The name rose comes from the Latin word rosa. Rose word लेटिन वर्ड रोज़ा से लिया गया है. रोजेज आर वैल्यूड फॉर देयर स्वीट फ्रेग्रेंस, मेडिसिनल वैल्यू, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू. रोजेस यानी कि गुलाब उनकी स्वीट फ्रेग्रेंस के लिए यानी कि उनकी स्वीट स्मेल के लिए, मेडिसिनल वैल्यू वो औषधि, उनकी औषधीय वैल्यू भी बहुत है. ऑर्नामेंटल यानी कि फॉर शोइंग, सब लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उसमें, और डेकोरेशन की वैल्यू के लिए भी बहुत ही जाने जाते हैं. कैन वी ट्राई टू बी बडिंग पोएट्स, राइटर्स एंड पोएट्स एंड राइट अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब द रोज? इसका मतलब ये है कि क्या हम पोएट और राइटर बन सकते हैं रोज़ के बारे में कुछ लिखने के लिए? तो हमें रोज़ के बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है.
1. Write a few lines to describe a rose. हमें रोज़ के बारे में, रोज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लाइन्स लिखनी है. The rose is a very beautiful flower. It has a very sweet fragrance. A rose is a symbol of love. There are more than 100 types. Turn the page of roses. Roses are of many colors like red, pink, white, yellow, etc. Rose petals are small and delicate. They are very soft. A rose plant has many thorns. So children, you have to write like this about rose. Here I have left 2 lines for you. So you have to write 2 lines by yourself. You can write some more lines too in your notebook. So complete this in your textbook. Here are the word meanings of activity 1, the queen of flowers. So these word meanings you have to write in your notebook. Symbol means sign. Dedication means devotion or loyalty. Divine means godly. Affection means love. Respect means admiration. Diva means a female star. Environment means surroundings. To wonder means to think. Species means types. To value means to understand the importance of something. Sweet means very nice. Fragrance means nice smell. Medicinal means relating to medicine. Ornamental means for show. Decorative means pretty. And budding means growing. So write this in your notebook. The king of rains, यानी कि बारिश का राजा. There are a number of factors that lead to rain. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कोजेस है, फैक्टर्स है जो रेन यानी कि बारिश लाते हैं. लीड टू रेन मीन्स बारिश लाते हैं. However, black clouds are commonly considered as a sign of rains. ब्लैक क्लाउड्स यानी कि जो काले बादल है वो कॉमनली उसे हमें पता चलता है कि रेन आने वाली है, यानी कि वो रेन का सिंबल है. काले बादल है जो वो बारिश के सिंबल है. क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. ब्लैक, ब्लू, वाइट एंड ग्रे. आसमान में जो बादल है वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, वाइट एंड ग्रे. दे एड ब्यूटी टू अवर एनवायरमेंट, डोंट दे. वो हमारे एनवायरमेंट में ब्यूटी यानी कि सुंदरता ऐड करते हैं. क्या वो नहीं करते? हाँ, ज़रूर करते हैं. हैव वी एवर वंडर्ड हाउ क्लाउड्स कैन बी आइडेंटिफाइड? क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्लाउड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे कैसे पहचाना जाता है? लेट अस रीड द फॉलोइंग लाइन्स टू नो अ फ्यू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. नीचे कुछ अलग अलग बादल के बारे में लाइन्स लिखी गई है, वो हम पढ़ते हैं. Cirrus clouds look like a curl of hair, while stratus clouds look like straight lines in the sky. Cirrus clouds वो हेयर में जो कर्ल्स होते हैं, कर्ली हेयर, ऐसे दिखाई देते हैं. जब स्ट्राटस क्लाउड्स जो होते हैं वो आसमान में स्ट्रेट लाइंस जैसे दिखाई देते हैं. द निम्बस क्लाउड्स आर क्लाउड्स ऑफ रेन. जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो बारिश के क्लाउड्स होते हैं. लेट अस लुक एट अ पिक्चर ऑफ द निम्बस क्लाउड्स.
हम नीचे निम्बस क्लाउड्स का पिक्चर देखते हैं। सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ निम्बस क्लाउड्स। Whenever we see these clouds, it is the cloud of rain. These all are the clouds of rain. So nimbus clouds are clouds of rain. Since nimbus clouds are dense with water, they appear darker than other clouds. Nimbus clouds पानी से भरे हुए होते हैं, थिक होते हैं, तो इसलिए वो दूसरे क्लाउड से ज़्यादा डार्क दिखते हैं। निम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट लो हाइट्स altitudes and are typically spread uniformly across the sky. निम्बस क्लाउड्स लो अल्टीट्यूड्स पे, लो हाइट पे दिखाई देते हैं, तो इसीलिए वो नॉर्मली, टिपिकली मीन्स नॉर्मली, जो स्काई के एक्रॉस यानी कि उसके यूनिफॉर्मली, सिमिलरली हमें दिखाई देते हैं। द निम्बस क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू अस। जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो हमारे लिए बरसात लाते हैं। गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 94। लेट अस रीड दिस पोएम Rain. Here the poem about rain is given. How beautiful is the rain! After the dust and heat, in the broad and fair street, in the narrow lane. बारिश कितनी सुंदर होती है। After the dust and heat, here dust means summer. समर और गर्मी के बाद, broad means wide and fiery means burning and hot street में, narrow lane में यानी कि small street में। How beautiful is the rain! How it clatters along the roofs like the tramp of hoops. How it gushes and struggles out. बारिश कितनी सुंदर होती है। वो कैसे क्लैटर मीन्स लाउड साउंड करती है रूफ पे। जब रूफ पे बारिश की बूंदें गिरती है तो बहुत बड़ी आवाज़ आती है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हुप्स मीन्स जैसे हॉर्सेस के फीट होते हैं वो कैसे नॉइस करते हैं, ऐसे नॉइस करती है। वो कैसे फ्लो होती है, गुश मीन्स फ्लो एंड स्ट्रगल मीन्स ग्रेट एफर्ट। फ्रॉम द थ्रोट of the overflowing spout across the window pane, it pours and pours, and swift and wide. ऐसी खुली पाइप से, ओवरफ्लोइंग स्पाउट यानी कि खुली जो पाइप होती है बड़ी सी, उसके थ्रोट में से पानी बहता है। विंडो पेन के सामने से भी पानी निकलता है और रेन के बाद रेन आती ही रहती है और बहुत ही स्विफ्ट यानी कि फास्ट एंड वाइड मीन्स ब्रॉड में वो रेन आती है। विथ अ मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, द रेन द वेलकम रेन। मडी टाइल मीन्स बहुत ही मड वाली जो टाइड वेव्स होते हैं, बहुत ही मडी वेव्स होते हैं, जैसे कि रिवर गटर की आवाज़ निकालती हो, गर्जना करती हो, ऐसे हम रेन का वेलकम करते हैं, रेन का स्वागत करते हैं। So children, learn this poem. Here are the word meanings about the poem. Here are the word meanings of the poem. Dust means summer, broad means wide, fiery means burning or hot, lane means a small street, to clatter means a loud sound, tramp means a kind of loud noise of feet, hoofs means a horse's feet, to gush means to flow,
To struggle means to make a great effort. Overflowing means flowing out. Spout means an opening of a pipe through which water flows out. To pour means to rain. Swift means fast. Wide means broad. Muddy means full of mud. Tide means wave. To roar means to make a loud noise. You have to write also these word meanings in your notebook and learn it. Activity 2. Answer the following questions based on the above poem. ऊपर जो रेन की पोएम हमने पढ़ी उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. 1 नंबर, वाई डू यू थिंक पीपल वेलकम द रेन? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोग रेन का वेलकम क्यों करते हैं? सो द आंसर इज आफ्टर द हॉट समर डेज पीपल लाइक टू वेलकम द रेन. When it rains, the climate becomes cool. So the people wants to be in cool weather after the hot summer. Turn the page. Page number 96. Question number 2. What are the sounds produced by the rain? So the answer is the rain clatters, gushes and roars. 3 number. You may think of writing a paragraph on the rainy season. So, here you have to write a small paragraph about rainy season, monsoon. आपको रेनी सीजन के बारे में यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखनी है खुद से. So complete this by yourself. Have a nice day. Goodbye.